Assalamu alaikum students. Today we will continue our chapter local time and standard time. A little bit introduction I have given already to you regarding latitude and longitude. Hope all of you have listened to that video. If you have not listened that video, it's compulsory to listen that video because you will not get this chapter. So we begin with this chapter, local time and standard time. What is the local time and standard time? Time is important, you have heard. How much it is important? Everyday life, what we do? We do time management, we see the time and do the work. From the beginning, from the starting, only when we wake up, what we decide? Everyday activity in a day. Our work is on the clock. Which time we have to do, which time we have to do the breakfast, sleep, going to office or any other work. We have to do the time, check the time. Every country has different time, you know. Different country have different time. What is the time management globally, and we will learn this today. How global level पे time is going to manage. When different countries have different time, so who decide what time they have to follow? Who decide what time India has to follow? And how we fix the time? So this is our chapter today. Local and standard time. Let's begin. The explanation now. In other times, how the people, because time management is not new, it was earlier also. In earlier times, how the people go to the time, they, you know, in Islam, the people used to go through, time, they learn about some events. Just say, you have learned about Surah Fil. Have you learned in Quran? Surah Fil. And the people used to check, the people of Makkah, they used to check the time. Oh, Surah Fil, मतलब जो हाथी का एक्सीडेंट हुआ था, people of other region they attack Makkah and they have elephant. तो साल को क्या रखे नाम? Elephant वाला साल. इसीलिए नाम आ गया Surah Fil. Fil means elephant. तो वो हाथी वाले साल से 2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, हाथी वाले साल के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, दिस इज द वे दे कीप द टाइम. वो ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके थ्रू वो टाइम को आगे पीछे मैनेज करते थे. पर डे के हिसाब से देखेंगे अगर तो वो सनराइज सनसेट से टाइम देखते थे. सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, दिस इज द कॉमन. अब देखो इस्लाम में हम लोग बाद में 5 टाइम वी यूज्ड टू प्रे. एंड व्हेन द नमाज स्टार्टेड 1400 ईयर बैक, नमाज को भी देखो जोहर के टाइम बोलते जवाल है, फिर फजर बाद बोलते होंगे, सनराइज होने के बाद नमाज पढ़ने गए. वी कीप अ रेगुलर चेक ऑफ टाइम थ्रू द सन. 5 तो स्टैंडर्ड है ये. देखते फजर हुआ, जोहर हुआ, असर हुआ, मगरिब हुआ और इशा हुआ. तो दिस इज द वे वी कीप द सन. ओके, शाइनिंग कितना हो रहा है, सनलाइट कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग टाइम देखते थे. और दूसरी जगह पे जो एडवांस नहीं है तो सनराइज सनसेट ऐसा देखते हैं. इसके अलावा दे हैव सम टूल्स आल्सो लाइक साइन क्लॉक, या इट मींस सम नेचुरल इवेंट. इस सब के थ्रू दे एक्सपीरियंस द टाइम. नेचुरली टाइम कैसे डिवाइड करते थे? दे सनराइज हियर, सनसेट है, सनराइज इधर, सनसेट हुआ, सनराइज हुआ वापस से नेक्स्ट डे. दिस इज द वे दे कीप होल डे मैनेज. ये ड्यूरेशन कैसे हो रहा है, जिधर सन सेटिंग हो रहा है उधर उसके अलावा सनराइज हो रहा है. Here, if sunrise over here, so sunset is over there. Some part of the some sunrise is over there, then sunset is over here. 24 आवर में क्या हो रहा है, सनराइज सनसेट दोनों हो रहे हैं. Yes. So this is the time set in the earlier day we used to do.
सनसेट वक्त नाइट हो गया, सनराइज वक्त तो डे हो गया. Yeah, this keep on doing and we keep check on time like this. I will now talk about the earth now. Our earth, this is our earth. It takes 24 hours to complete its rotation. Since earth is moving, earth is keep on moving. है ना? Take 24 hours लेते it complete its rotation. Rotation is different and revolution is different. What the meaning of revolution? Revolution is 365 days. Okay. Earth is taking to revolve around the sun, and 24 are upon its axis. मतलब ऐसे होकर के ऐसे हो रहा है, एक्सिस के ऊपर हो रहा है. ये जो अर्थ का ऐसा दिखा रहा है, दैट अर्थ इज टिल्टेड, थोड़ा टिल्ट है अर्थ, जिसकी वजह से सीजन चेंज होती है, टिल्ट होने की वजह से. नाउ सी हियर, अर्थ इज फेसिंग लाइट ऑन दिस साइड एंड डार्क ऑन दिस साइड. कैन ऑब्जर्व? तो 24 are it takes to complete one rotation, and within that 24 hours we have sunset and sunrise. We consider the direction? No, they are talking about direction. We are the same sun किधर राइज हुआ, ईस्ट में राइज हुआ है ना. जापान इज इन द फार ईस्ट. सबसे बोलते जापान में सबसे पहले सनराइज होता है, तो बोलते सनराइज ईस्ट से होता है. इज इट करेक्ट? नो. अच्छी थिंग इज कि आवर अर्थ, दिस इज स्पेलिंग इज रॉन्ग. आवर अर्थ मूव वेस्ट टू ईस्ट. आवर अर्थ मूव वेस्ट टू ईस्ट. तो इट अपीयर टू अस कि सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कि आप ट्रेन पे, यू आर गोइंग विलेज जा रहे ट्रेन से, एंड यू आर सिटिंग एट द साइड ऑफ द विंडो. you will observe कि you are sitting at a fixed place and the trees, the building, everything are moving. Reality ऐसा होता है? No. You are moving and other are at rest. तो हमें appear होता है ऐसा कि since earth is moving from west to east, so it appears to us कि sun is moving from east to west. तो सन पहले ईस्ट में आ रहा है, फिर बाद में वेस्ट में जा रहा है. मतलब सनराइज पहले ईस्ट में होगा, फिर बाद में वेस्ट में होगा. पहले ईस्ट में होगा, since it is moving, तो it keep on changing. जब तक सनलाइट की पोजीशन keep on changing हो रहा है. Position is keep on changing. Up since Earth is rotating, that's why we have sunrise, we have moon, we have sunset and midnight. We have sunrise, we have noon, then sun is going to afternoon, and we have midnight now because Earth is rotating. The face of Earth, which is facing the surface of the Earth, which is facing the sun, that is sunrise. Which is not facing the sun, that is sunset or night. During rotation, the longitude in the western part face the sun gradually, while those in the eastern part face first. जो वेस्ट में है लॉन्गिट्यूड, वो क्या करता है, बाद में फेस करता है सन. पहले सन इधर ईस्ट राइज होगा, ईस्ट में. Now when the west part come here, it is facing the sun. The longitude which faces the sun is sunrise, and the one which is not facing the sun is darkness is there. Now see what is saying. While traveling in a bus, we often see trees, electric poles, buildings, etc. moving. They are outside the window. They are moving. They appear to us moving in opposite direction. They are moving and in opposite direction. And what is actually? They are stationary. They are freeze.
एंड अवर बस इज मूविंग फॉरवर्ड। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो लोग मूव हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सन मूव हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इट इज अवर अर्थ विच इज मूविंग। गॉट इट? तो हमें सन का डायरेक्शन हमें अपोजिट दिखेगा, उल्टा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। Similarly, because of the rotation of the earth, we feel that the sun is changing its position. हमें ऐसा लग रहा है कि सन पोजीशन चेंज कर रहा है। नो, इट इज आवर अर्थ। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डेली, that is perform this activity in cocoa ground on a bright sunny day. Let's see what the activity is saying. You have a pole fixed on the ground. It's a full day activity. You see in the morning the sun is rising. Then it's going here, afternoon, evening time. But what you observe, the shadow of the sun in the morning is the longest in the morning and evening. Pole का shadow longest है कब? मॉर्निंग में इधर शैडो इधर आएगा तो सन इधर है तो शैडो इधर आएगा, इवनिंग में सन इधर है तो शैडो इधर आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट कब है? मॉर्निंग एंड इवनिंग में। और सबसे शॉर्टेस्ट कब होता है? नून टाइम में। व्हेन सन इज गोइंग टुवर्ड द ओवरहेड, ऊपर जा रहा है सन, तो क्या हो रहा है? शैडो छोटा हो रहा है। और नून के टाइम पे शैडो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। यस, क्लियर टू यू? ऐसा ऑब्जर्व किया आप लोग? नून की टाइम पे शैडो सबसे लोएस्ट हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। और इवनिंग में और मॉर्निंग में शैडो क्या होता है? सबसे ज्यादा रहता है। और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रहता है। तो शैडो की वजह से क्या होता है? पोल का शैडो रिड्यूस हो रहा है मूवमेंट की वजह से। सपोज हम लोग सन का मूवमेंट बोलते हैं या अर्थ का, जिसका से क्या हो रहा है? शैडो कीप ऑन चेंजिंग। इसी के लिए सन का पोजीशन जब चेंज हो रहा है स्काई में, तो हमारे लाइफ में भी क्या हो रहा है? इधर तो शैडो भी चेंज होगा। यस, और डे नाइट क्या होगा? लॉन्ग होगा। कब? मॉर्निंग और इवनिंग में। और नून टाइम पे शॉर्ट होगा। And why this all happened? This is happened because of earth rotation. Earth is rotating. Earth is rotating. That's why this is happening. So what is the local time? Local time इसको बोलते हैं जब as the sun start moving in the sky after sunrise, तो हमारे जो सन का पोजीशन है उसके हिसाब से हम लोग लोकल टाइम बोलते हैं। मतलब मुंब्रा थाने वाले तो बोल सकते हैं अभी आफ्टरनून है, तो पूरे थाने एरिया में आफ्टरनून रहेगा क्योंकि छोटा एरिया, स्मॉल एरिया है, लोकल एरिया है। पूरे अगर इवनिंग होगा तो पूरे थाने एरिया में इवनिंग होगा। नाइट होगा तो पूरे थाने एरिया में नाइट होगा। मॉर्निंग होगा तो पूरे थाने एरिया में मॉर्निंग होगा। तो दिस इज द लोकल टाइम। लोकल टाइम इज डिसाइडेड बाय पोजीशन ऑफ द सन। सन का पोजीशन इज चेंजिंग, द लोकल टाइम is also keep on changing. So we follow the local time according to sun, but it's not accurately, but still we follow. We can understand in the local time. The length of shadow reduces as the sun is rising. Normally the length of shadow is shortest at noon. As the sun moves towards the horizon in the shadow again increasing by evening. Noon time is same at any given longitude. Abhi, what the meaning of this? This is very important statement. It is not explained clearly over here. I will explain you. Noon time is same at any given longitude across the earth. अभी देखो यहाँ पे अगर सन रहेगा तो जो भी ऐसे स्टेट है, सन इधर स्टेट है, तो जितना ये लाइनिंग स्टेट गया तो सन वहां पे नून देगा सारे डायरेक्शन में।
सारे लॉन्गिट्यूड पे या सारी ये सीधा लाइनिंग ऑफ द लाइन इज ओवर हियर। तो जितने स्ट्रेट लाइन है वो सारे हर जगह पे मून ऐसा रहेगा, सन ओवरहेड रहेगा, शैडो सबसे कम रहेगा। इट वांट टू से कि सन जब नून टाइप होता है तो सारे लॉन्गिट्यूड मतलब लाइनिंग पे क्या होता है, नून ही रहेगा, सेम टाइम रहेगा। So not got this when the earth latitude longitude will show, I will explain. From north pole to south pole क्या है, location is decided by sun only, is known as local time. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल हर जगह पे नून टाइम रहेगा एक लॉन्गिट्यूड पे। तो सर लोकल टाइम क्या, you see the since our earth is क्या tilted, तो tilted होने का क्या होता है कि ये एरिया में रेडियस कम है, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, तो सन का लाइट क्या होगा यहाँ पे ज्यादा आएगा हमेशा, क्योंकि छोटा एरिया है ना। तो यहाँ पे डे, यहाँ पे डे कैसे हो रहा है, सन फेस कर रहा है तो इधर डे हो गया, इधर नाइट हो गया बैक साइड में। लेकिन यहाँ पे तो छोटा सा रेडियस है तो सन लाइट क्या हटके आ रहा है, तो पोल के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज मोर देन 24 आवर। मतलब यहाँ पे ऐसे 6 मंथ क्या रहेगा, डे रहेगा, या 20 आवर, 22 आवर, 24 आवर, 18 आवर डे होती है। यहाँ पे जो लोग रोजा रखते हैं यहाँ पे ना, तो 18 घंटा 20 घंटा ऐसा रोजा रखते हैं। उसका उल्टा अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, रोजा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे नाइट कितना रहेगा, 2 घंटा, सॉरी नाइट कितना रहेगा, यहाँ पे 18 घंटे का नाइट रहेगा, 20 घंटे का 24 आवर का नाइट हो सकता है। तो सीजन में चेंज की कौन चेंजिंग, जब सन का लाइट ज़्यादा होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ पोल पे डे ड्यूरेशन इज इंक्रीजिंग, व्हेन सन लाइट इज मोर टुवर्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब जब हमारे पास सर्दी होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी होती है ना। सीजन कैसे चेंज होता है ये हमारे एक डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। तो जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो साउथ में क्या होगा, साउथ पोल पे, ऑस्ट्रेलिया क्या है साउथ पे ना, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे साउथ पोल पे डे ड्यूरेशन बहुत ज्यादा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या है, सर्दी है नॉर्थ में, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ पोल पे क्या होगा, डे ड्यूरेशन इज लेस, तो यहाँ पे 18 घंटा 20 घंटे का नाइट होगा, यहाँ पे 18-20 घंटे का डे होगा। तो लोकल टाइम क्या हो रहा है, नून टाइम से यहाँ पे डे टाइम फिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि 18 घंटे का डे हो रहा है, 20 घंटे का डे हो रहा है, 24 आवर का डे हो रहा है, तो इट नॉट पॉसिबल कि लोकल टाइम से नून टाइम से वहाँ पे टाइम फिक्स कर पाएंगे। तो हाउ दे आर डिसाइडिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, जो पोल पे रह रहे हैं, यस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो 24 आवर किस पर हो रहा है, डिपेंड हो रहा है सीजन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, कौन से सीजन में, गर्मी में तो पोल में डे ड्यूरेशन इज मोर, विंटर में पोल में तो डे ड्यूरेशन इज वेरी लेस। As a result, timing of the sunrise, noon, sunset and midnight at this place become important. यहाँ पे पता नहीं चलता हमें, व्हाट रिटन 6 मंथ तक डे और नाइट का 6 मंथ तक रह सकता है यहाँ पे, कहाँ पे, पोल पे। You might have heard some video कि रमजान में रोजा कितना, वो लोग 18 घंटे का रोजा रखते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पोल के पास देखने गए टाइमिंग तो उनको डेट देखने पड़े, कौन सा सीजन है, ऐसे तो लोकल टाइम नहीं डिसाइड कर सकते हो लोग। और
तो लोकल टाइम वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते, तो वी हैव टू डिसाइड सम बेटर वे टू डिसाइड द लोकल टाइम। तो shadow of the sun cannot be considered for telling the noon time। नून टाइम बताने के लिए सन का शैडो से अगर करते तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, इक्वेटर के पास पॉसिबल है, इक्वेटर के पास पॉसिबल है, लेकिन पोल के पास पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहां पे तो 18 आवर का नून हो रहा है, वहां पे 6 आवर का नून हो रहा है, कभी 6 आवर का डे हो रहा है, 18 आवर का डे हो रहा है, ये कीप ऑन चेंजिंग, तो वहां पे बता नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, वी हैव टू टेक we have to choose a different method। different longitude have different timing for sunrise, noon and sunset। अभी मैं क्या बताया इसका मतलब हुआ, सपोज दिस इज सन, दिस इज अर्थ, बोथ आर अर्थ, तो जब सन यहाँ पे रहेगा है ना, सन यहाँ पे, तो सन इज फेसिंग दिस लॉन्गिट्यूड, ये पूरे लॉन्गिट्यूड में सन इज फेसिंग, लेकिन पीछे जो रहेगा इसके, मतलब ये साइड इसके बैक साइड है, ये साइड क्या होगा, डार्क हो जाएगा, सन इज फेसिंग दिस, और तो ये इसके बैक साइड में जो है वो क्या होगा, डार्क हो गया। अब एट अ वन टाइम क्या हो रहा है, सन ये पूरे इसके पर है, ये पूरे लाइन पे क्या रहेगा, नून रहेगा, जब सन इधर आया ये पूरे लॉन्गिट्यूड पे क्या रहेगा, इट इज नून। तो जैसे जैसे अर्थ मूव हो रहा है, अर्थ इज मूविंग, तो ये कभी इधर आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूड इधर आया, ये लॉन्गिट्यूड पे नून हुआ, ये लॉन्गिट्यूड पे नून हुआ, तो इसकी ऑन चेंजिंग, तो लॉन्गिट्यूड, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड इज फेसिंग डिफरेंट टाइम, ओके, एट डिफरेंट टाइम सन, जब वो लॉन्गिट्यूड सन को फेस कर रहा है तो क्या होगा, नून टाइम हो जाएगा। Hope you got understood. If you not got, message me। डिफरेंट लॉन्गिट्यूड फेस कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पे सन को, जैसे व्हेन इट इज नून एट मुंबई में नून है, तो कोलकाता में सेम रहेगा नहीं, सन इधर से राइज हुआ, ईस्ट से राइज हुआ, तो पहले कोलकाता में नून हुआ, फिर बाद में जब मुंबई की तरफ इधर आया सन, तो नून यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टरनून हो गया, यहाँ पे आफ्टरनून और यहाँ पे नून टाइम हो गया। गॉट इट ना, क्योंकि ये और ये पूरे लॉन्गिट्यूड पे, जो भी मुंबई का लॉन्गिट्यूड सपोज 73 है, ये पूरे लॉन्गिट्यूड पे क्या रहेगा, नून रहेगा। जब कोलकाता में आया था, यहाँ पे दिस इज कोलकाता, तो ये कोलकाता का लॉन्गिट्यूड अराउंड 88 समथिंग है, तो पूरे लॉन्गिट्यूड पे क्या रहेगा, नून रहेगा, सेम टाइम रहेगा ये पूरे लॉन्गिट्यूड पे, गेटिंग, और दो लॉन्गिट्यूड पे सेम टाइम नॉट पॉसिबल, क्योंकि सन कीप ऑन मूविंग, तो ये जब लॉन्गिट्यूड अर्थ को सन को फेस करेगा तो यहाँ पे नून हो जाएगा। इसके बाद सपोज दुबई इधर है, तो व्हेन दुबई में फेस सन इट विल नून, और उस टाइम में मुंबई में क्या होगा, आफ्टरनून हो जाएगा, और कोलकाता में इवनिंग हो जाएगा। कोलकाता इज देयर बिकॉज कोलकाता लाई ईस्ट ऑफ मुंबई, इट वुड ऑलरेडी हैव आफ्टरनून, ईस्ट पे सन होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे आफ्टरनून हो चुका होगा। लोकल टाइम ऑफ प्लेस ऑन द सरफेस डिटरमाइन रिफर्स टू नून टाइम, नून टाइम से डिसाइड होता है टाइम अर्थ का। दिस इम्प्लाइज दैट प्लेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, जो भी सेम लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे वो सारे जगह पे सेम आफ्टरनून रहेगा। When people living in large area across the longitude have to interact each other, अब बड़े बड़े एरिया में रह रहे, यहाँ पे रह रहे कंट्री में, तो लोकल टाइम तो एक आफ्टरनून एक बार हुआ, लेकिन वहाँ पे अभी कोलकाता में, तो कोलकाता में इवनिंग हो गया है, यहाँ पे आफ्टरनून है मुंबई में, और कॉलिंग कर रहे बिजनेस के लिए, अरे अभी इतना टाइम मैं 1 घंटे बात कर रहा हूँ, या मैं 6 बजे करूँगा, सॉरी मतलब 6 बजे मतलब हम लोग वॉच देख रहे, क्लॉक देख रहे, जब क्लॉक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, एक मैं ये इवनिंग में करूंगा कॉल आपको, इवनिंग तो उधर हो जाएगा, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है ना एक ही घंटे में,
लोकल जगह पे पॉसिबल है, इवनिंग हो रहा है हर जगह, इवनिंग थाने में एक साथ हो रहा है, लेकिन कलकत्ता और मुंबई में इवनिंग आफ्टरनून अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो इसके लिए टाइमिंग क्या हुआ, फिक्स किया गया है। और जब अगर एक कंट्री से दूसरा कंट्री अगर बात करने का रहेगा तो जैसे अभी इंडिया में 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, जापान में ऑलरेडी दोपहर हो चुका होगा, यहाँ पे मॉर्निंग हुआ है, मिड मॉर्निंग हुआ है, और जापान में ऑलरेडी इट वुड बी नून टाइम। और मैं कॉल कर रहा जापान में, अरे तो देयर वुड बी कंफ्यूजन, जितना जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा टाइम का डिफरेंस हो रहा है, तो पूरे अर्थ पे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, टाइमिंग को फिक्स किया गया, स्टैंडर्ड माना गया कि हाँ ये कंट्री का टाइमिंग ये लॉन्गिट्यूड से फॉलो करेंगे, ये कंट्री का टाइमिंग ये लॉन्गिट्यूड से फॉलो करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। The using of local time would lead to cost and confusion. So, in such case, using the local time is not convenient, possible नहीं है। तो क्या किए, मुंबई is located 73 degree east longitude and कोलकाता 88। कोलकाता 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो दोनों का 1 घंटा के आसपास क्या है, बहुत मुंबई एंड कोलकाता अलोकेटेड विद इन इंडिया, इंडिया में है ना, लेकिन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है, तो टाइमिंग भी क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो कितना कंफ्यूजन हो रहा है। और इंडिया के बाहर अगर दूसरे कंट्री से करेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ये लोकल टाइम डिफर बाय 1 आवर, 1 घंटे का फर्क हो रहा है। इफ दे आर डिफरेंट लोकल टाइम विद इन अ कंट्री बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस, तो there will be lack of synchronization in the routine activity of the country। मतलब वहाँ पे बिजनेस पर्पस करना, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना, तो वो क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। Our daily business in the country will be not possible। Therefore, generally the local time at the longitude which generally passes through the middle of the country is deemed to be standard time of that country। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी क्या किए साइंटिस्ट लोग बैठ के कि भाई ऐसा करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग टाइम हो रहा है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे, तो कोई एक लॉन्गिट्यूड को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जब आफ्टरनून हुआ तो पूरे इंडिया में आफ्टरनून मानेंगे, यहाँ पे इवनिंग हुआ तो पूरे इंडिया में इवनिंग मानेंगे, यहाँ पे मॉर्निंग हुआ तो पूरे इंडिया में मॉर्निंग मानेंगे। मतलब यहाँ पे 10 बजा तो पूरे इंडिया में 10 बजेगा, यहाँ पे 12 बजा तो पूरे इंडिया में 12 बजेगा। तो ऐसा फिक्स किया गया। Why they fix over here? It is the Mirzapur near Allahabad in UP, because it is the middle of India. It is this longitude, it is 82 degree east, now east of ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ईस्ट लिखे यहाँ पे। दिस इंडिया हैज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मैंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर आई टॉट यू इन लास्ट वीडियो। तो इंडिया हैज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट व्हाई आई एम टेलिंग 82 डिग्री ईस्ट। तो इंडिया का ठीक है मिडिल में, मिडिल मतलब इंडिया यहाँ से मिडिल नहीं है, इंडिया का पार्ट यहाँ से, दिस एंड दिस, इफ यू टेक दिस तो दिस इज कम मिडिल। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये पूरे जो डिफरेंस हो रहा है ये 1 घंटा से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, मतलब विद इन 1 आवर का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ से इसको फिक्स किए। दिस कॉल्ड एज स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फॉलो दिस लॉन्गिट्यूड, longitude at Mirzapur, that is 82 degree east। हर कंट्री के 20 से पास किया जाता है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड ऑल ओवर कंट्री। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी उसका मिडिल वाला होगा, बांग्लादेश के लिए उसके मिडिल वाले से होगा, अदर कंट्री है सिमिलर दैट है, दूसरे दूसरे कंट्री भी ऐसे ही करते फॉलो। कोई एक लॉन्गिट्यूड को फिक्स करते, वो लॉन्गिट्यूड पे जब आफ्टरनून होगा तो सारे कंट्री में आफ्टरनून मानते हो लोग। With respect to business at global level, there should be compatibility between the standard time। अब ग्लोबल लेवल पे क्या करेंगे, अब 2 कंट्री मैंने ऐसा अपने एक कंट्री अपना ऐसा टाइम मान लिया, दूसरा कंट्री अपना दूसरे लॉन्गिट्यूड को मान लिया, तो ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, कैसे मुझे पता चलेगा कि अमेरिका में ऐसा ही टाइम होगा, सऊदी अरब में ऐसा टाइम होगा, मक्का में ये टाइम पे तरावी स्टार्ट हो रहा है,
मलेशिया में ये टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, ये टाइमिंग हो रहा है, ये इस टाइम पे कॉल करना चाहिए, यहाँ पे ऑफिस इस टाइम पे खुला होगा, कैसे पता चलेगा? तो वर्ल्ड लेवल पे भी क्या किए, स्टैंडर्ड टाइम माने, है ना, वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडर्ड टाइम माना गया। अब सारी कंट्री क्या करेंगे, अपने अपने कंट्री का वो, है ना, जो वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडर्ड टाइम माना गया वहां से फिक्स करेंगे, दैट्स कॉल्ड जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम, और यूनिवर्सल मीन टाइम भी बोला जाता है उसको, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। वेरियस ऑफ टाइम ऑफ वेरियस कंट्री, इसलिए क्या किए, वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में फिक्स किए, 24 टाइम जोन में फिक्स किया गया अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, नाउ दिस इज ब्लड क्लियर हो रहा हो, दिस इज 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, और पासिंग फ्रॉम लंदन। The time zone have been created with reference to prime meridian itself. This is the prime meridian. This is the red you see. This is the red color is the 0 degree longitude. And यहाँ से ये eastern hemisphere. This is the western hemisphere. India lies over here. India lies over here. This is India. You can see the red color. This is the Indian longitude. India का longitude है ये. Now you can see this is 0 degree. And this is 82 डिग्री 30 मिनट, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टाइम देखिए कि यहाँ पे जो टाइम है, सारे कंट्री अपने अपने लॉन्गिट्यूड को इस तरह से फिक्स करेंगे, टाइमिंग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इंडिया का यहाँ पे 12 बजा, तो यहाँ से फिक्स करेंगे कि इंडिया का टाइमिंग कितना डिफरेंस रहेगा। इंडिया कौन सा टाइमिंग फिक्स करेंगे, कौन सा लॉन्गिट्यूड लेंगे, इंडिया का एक लॉन्गिट्यूड लेंगे, सऊदी अरब भी एक लॉन्गिट्यूड लेगा, इधर अमेरिका है या सपोज इधर जिम्बाब्वे है तो वो भी एक लॉन्गिट्यूड फिक्स करेगा। लेकिन ठीक है, अगर कंट्री इतना सफिशिएंट साइज है तो एक लॉन्गिट्यूड फिक्स करते हैं। बहुत सारी कंट्री बहुत बड़ी साइज है, उसका डिफरेंस क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस 1 घंटा से ऊपर हो रहा है। जैसे रशिया, रशिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो रशिया स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस ऑल रशिया, इतना बड़ा यहाँ से लेके, और ये वर्ल्ड आधा कंट्री और यहाँ तक रशिया है, इससे आगे तक ये अमेरिका, यहाँ तक इतना बड़ा है रशिया। मतलब यहाँ से मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और आफ्टरनून होते होते इधर क्या होगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा इधर जब मॉर्निंग है तो इधर नाइट है रशिया में, इधर जब आफ्टरनून होगा तो इधर मॉर्निंग होगा, इतना ज्यादा डिफरेंस है, 5-6 आवर का डिफरेंस है। तो वहां पे क्या क्या करते हैं, एक से ज्यादा लॉन्गिट्यूड फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, रशिया, कनाडा, ये सब में एक से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कंट्री का साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हमें कितना ज्यादा अलग अलग डिफरेंट है, हमें दूसरे कंट्री का नहीं देखने का, हमें इंडिया का देखेंगे। और जहाँ पे 1 or 2 आवर ओनली, तो ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम इज कंसिडर। जहाँ पे 1 घंटे का 2 घंटे का फर्क होता है जो कंट्री में, वहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। जहाँ पे ज्यादा है, जैसे एग्जाम्पल रशिया, कनाडा, कनाडा इज दिस इज द कनाडा, कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, वहाँ पे एक से ज्यादा टाइमिंग फॉलो होती है। तो वहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा डिटेल रशिया और कनाडा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, या जो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे एक ही टाइम फॉलो होगा। बट वी हैव टू कीप इन नॉलेज कि रशिया में अलग अलग टाइम है। But if the longitudinal extent is to get extend is more than that, then 1 standard time is not possible. ना बहुत ज्यादा extend longitudinal extent तो एक टाइम फॉलो नहीं होता है, वहां पे एक से ज्यादा होता है। More than 1 standard time zone are considered. तो रशिया, यहाँ से रशिया स्टार्ट होता है और यहाँ तक रशिया है, तो कितने सारे लॉन्गिट्यूड फॉलो कर रहे हो, इसके लिए अलग अलग टाइम जोन पे जाके रशिया को बांटे कि अलग अलग रशिया में एक कंट्री में अलग अलग टाइम होगा, अलग अलग प्लेस पे। इंडिया में एक ही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेट्स टॉक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट दिस डैश इज स्मॉलर यूनिट ऑफ डिग्री, स्मॉलर यूनिट ऑफ डिग्री। जैसे मीटर है, मीटर का स्मॉलर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर सेकंड, सेंटीमीटर मिलीमीटर, और बिगर यूनिट क्या है, किलोमीटर। तो स्टैंडर्ड का क्या होता है, 82 डिग्री का 30 मिनट है, ये इंडिया का
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंडेड IST बोलते हैं जिसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ ये लॉन्गिट्यूड से फॉलो होता है, ये लॉन्गिट्यूड से इंडिया का, सारे इंडिया का टाइमिंग मानते हैं। और दिस इज ईस्ट, मतलब ईस्ट हेमिस्फीयर में है। दिस इज अवर ईयर, ये इंडिया का टाइमिंग है। दिस इज मिर्जापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। दिस लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ कंट्री, इंडिया के मिडिल से पास होता है। रेफरेंस टू दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लोकल टाइम एट दिस लॉन्गिट्यूड हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। पूरे इंडिया का टाइमिंग जो मिर्जापुर में होगा वही पूरे इंडिया में होगा। द when the sun directly overhead on this longitude, जब यहाँ पे ओवरहेड होगा दैट इज नून होगा, तो पूरे इंडिया में क्या मानते हैं, नून टाइम मानते हैं। There is no difference of more than 1 hour, और यहाँ से क्या हो रहा है, पूरे इंडिया का टाइमिंग 1 घंटा से ज्यादा का टाइमिंग का डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो इट इज अ गुड एंड वेरी एडजस्टेबल। अभी देखो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम क्या है, फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन या ग्रीनिश पे जो है, मैंने बताया कि वो उसको फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर, अब सारे कंट्री क्या करेंगे अपने अपने, इसका फुल फॉर्म है ग्रीनिश मीन टाइम, दैट इज ग्रीन जीएमटी। ये क्या है, इंग्लैंड में ये कंसीडर एज स्टैंडर्ड। द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वेरियस कंट्रीज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू जीएमटी। दूसरे कंट्री का टाइमिंग कैलकुलेट करने का तो जीएमटी से कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग सब करेंगे अभी हमें ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया कि सन ईस्ट में राइज होगा, उसके बाद वेस्ट में जाके डूबेगा। सबसे पहले सन इधर होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग इधर होगा, फिर बाद में मॉर्निंग इधर रहेगा, फिर बाद में जब इधर मॉर्निंग इधर क्या है, नाइट है ना। यहाँ पे आफ्टरनून हुआ तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग होगा, यहाँ पे इवनिंग हुआ तो यहाँ पे आफ्टरनून हुआ, है ना। तो जब भी हम लोग ईस्ट की तरफ आते हैं ना, हम क्या करते हैं, टाइम को अगर कैलकुलेट करने का मुझे टाइम, तो ईस्ट की तरफ जैसे जाएंगे हम लोग तो क्या करें, टाइम को ऐड करते हैं, टाइम को ऐड करते हैं। और जब हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को माइनस करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ देखो 2 किलोमीटर है ना, तो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज टुवर्ड वेस्ट। दिस इज ईस्ट ना, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और ये वेस्ट में। तो जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का टाइम क्या रहेगा, ग्रीनिश से ज्यादा रहेगा। यहाँ पे सपोज ग्रीनविच पे 9 बज रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 9 से ज्यादा रहेगा, मे बी 9:30 मे बी 10, वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पीछे रहेगा, यहाँ पे 9 बजा है तो ये पीछे ही रहेगा, मतलब मे बी 8:30 या 8:45 इतना हो रहा होगा यहाँ पे, समझे, क्योंकि ये वेस्ट में। गेटिंग। और देखो एक और एग्जांपल कि इंडिया, देखो इंडिया, अपना इंडिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो अगर हम लोग को ग्रीनिश से कैलकुलेट करने का टाइमिंग इंडिया का, ग्रीनिश पे 12 बज रहा है दोपहर में, दोपहर 12 बज रहे हैं, ओके, आफ्टरनून हो रहा है, नून हो रहा है। तो जब इंडिया का टाइमिंग क्या रहेगा, हमें ऐड करने का रहेगा, मतलब इंडिया में कुछ शाम हो रहा होगा 12 बजे। जब ऐड करेंगे टाइमिंग तो 12 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवनिंग की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, शाम हो रहा है। As they are going toward the east, they are adding the time. As they are going toward the west, we have to minus the time. Getting? Indian Standard Time is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. जो ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट ज्यादा है इंडिया का टाइमिंग, मतलब आगे जा रहा है। ये कैसे कैलकुलेट किए, we will do that in the next video. If it is 5 p.m. at Greenwich, then in India it is 10:30. 5 बजे शाम हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, तो इंडिया में 10:30 क्या हो रहा है, नाइट हो रहा है, क्योंकि 5 आवर ऐड किए इसमें, 5 घंटा ऐड किए, कितना टाइम हो रहा है। तो टाइम इज वी आर टुवर्ड द ईस्ट, इंडिया ईस्ट है, ग्रीनिच पे, तो यहाँ पे टाइम ऐड कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर।
डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे बता रहे ऑलवेज रिमेंबर सेम थिंग, longitude lying to the east of any longitude are ahead of the time at that longitude, while those lying to the west are behind. As the distance between two longitudes increases, their local time also start differing. ज्यादा डिफरेंस होगा तो ज्यादा क्या होगा, टाइम डिफर करेगा. हाँ, if we multiply the difference between two longitude by 4 minutes, then the difference in respective local time can be calculated. And the last one is the difference in longitude can be known with the help of globe or map. ये सब तो हो गया, आप समझ सकते हैं यहाँ पर. But they are given 4 minutes. But they are given 4 minutes. If I divide, total longitude is 360. Total longitude is 360, and total time Earth is taking to cover. Sun is taking to cover the Earth, है ना, चारों तरफ पूरा रोटेशन होने के लिए 360 डिग्री को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर. तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सन को 1 घंटा में कितना लॉन्गिट्यूड कवर करता है. तो वी हैव कैलकुलेटेड 360 डिवाइड बाय 24 कितना आया, 15. मींस 1 घंटा में 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड सन इज कवरिंग. सन इज रीचिंग विद इन 1 आवर 15 लॉन्गिट्यूड. तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने के कितना टाइम लग रहा है सन को. इफ वी डिवाइड 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 15 लॉन्गिट्यूड, तो 1 लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट. मींस अर्थ को सन 1 घंटा में 4 मिनट में 1 लॉन्गिट्यूड कवर करता है, 4 मिनट में 1 लॉन्गिट्यूड कवर करता है, और 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड, 360 लॉन्गिट्यूड कितना में 24 आवर में. That why they have given 4 minutes over here. ना, दो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना रहेगा टाइमिंग का, 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा. तो by this way we can calculate the timing. ना, अगर we know the longitude difference, तो we can calculate the timing of any country. कोई भी कंट्री का टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी प्लेस का टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे ये टाइमिंग हो रहा होगा. तो in this video this much. In the next video we will calculate the timing. Thank you all of you.